Shanti. Om Shanti and good morning. Good morning. Om Shanti. At the Brahma Kumaris, when we greet each other, जब हम एक दूसरे को मिलते हैं, तो हमारी जो greeting है, that is Om Shanti. A word that we all have heard and said many times, but a word whose meaning we need to understand and then implement. Om Shanti means I am a peaceful being. Om means Aham Atma, I the soul, and Shanti is peace. So every time we say Om Shanti, we're saying I am a peaceful being. मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ. अच्छा, आज बड़ा सुंदर टॉपिक रखा है कि हमें ट्रांसफॉर्म करना है. क्या ट्रांसफॉर्म करना है? प्रेशर से कहाँ चेंज करना है? प्लेजर में जाना है. मतलब टेंशन और स्ट्रेस को ख़त्म करके जीवन को कैसा बनाना है? हैप्पी. And not happy once in a while, but happy always. Do you think it's possible to be happy always? Is it possible to be happy always? हमेशा खुश रह सकते हैं? Always happy? खुश रह सकते हैं हमेशा? हमेशा खुश रह सकते हैं? नहीं रह सकते. क्या आ जाता है बीच में जो हैप्पीनेस गायब हो जाती है? क्या रीज़न है जो हैप्पीनेस गायब हो जाती है? एनीबडी, क्या रीज़न है? हाँ, टेंशन आ जाती है. तो टेंशन का भी तो कोई कारण होगा ना. देयर हैज़ टू बी द रीज़न व्हाई आई गेट स्ट्रेस्ड. सो जस्ट क्लोज योर आइज फॉर अ मिनट. लेट एवरीबडी अराउंड यू सेटल डाउन. सभी जो खड़े हैं ना वो बैठ जाए. Everybody who's standing at the back, everyone sit. Just close your eyes for a minute. And let's ask ourselves, what is the cause of the tension in my life? There has to be a reason. What is the cause of the tension in my life? Stress. There has to be a reason. And find the reason that is specific in your life. It could be at home, it could be at work, it could be with people, it could be with your own self. What is the reason because of which my mind gets disturbed sometimes? Find at least 2 reasons which disturb my mind. Okay, if you found the reason, then raise your hand. अगर आपको रीज़न मिल गया तो हाथ उठा लो. नहीं तो फिर हम और साइलेंस में बैठेंगे. Then 2 more minutes to find the reason, but we need to know the reason.
We can't just say my mind gets disturbed. We need to know what's the reason because of which my mind gets disturbed. Because once we know the reason, then we can find the solution. And you don't need to tell anybody the reason, but only you need to know. Do you know the reason? Anybody who's found 2 reasons why the mind gets disturbed? Not yet? Not yet? This side? Found the reason? You want to sit 1 more minute in silence to find the reason? सारा दिन में कौन सी बात पे बोलते हो? टेंशन है, टेंशन है, टेंशन है, टेंशन है. When is it that the mind finds pressure here? What is the reason? What happens? When is the reason? What is the reason when the mind gets disturbed? What is the reason? Main thing, not specific reason in your life, but when is it that my mind gets disturbed? When? When? Anybody? When? I'm not going to give the reason. You have to give the reason. Mind gets disturbed when? Say it in your own language if you want, but give the reason. Mind gets disturbed when? When there is pressure. And what is the pressure of our life? What would we call this is pressure, this is pressure, this is pressure, because of which my mind gets disturbed? What would we call pressure? What is pressure? By expectations from other people. I want to do a particular thing, particular work, when the resources are not enough. Resources could mean in terms of people, in terms of resources, in terms of money, when the resources are less. Anything else? Pressure? Pressure? Okay, do any of you ever get angry? Do any of you ever get angry? What is the reason to get angry? When what happens that we get angry? When? Not able to handle pressure. So I get stressed when there is pressure. Then I get angry when I'm not able to handle the pressure. Okay. And what is that pressure? When did you get angry last? Anybody wants to share when they got angry? What happens when I get angry? What's the reason? Because every time we get angry, what is happening to the power inside? There is a power here. Look at this mind like a battery. Suppose this battery is fully charged in the morning. So fully charged. Now during the day we have to take care that this battery remains charged. But each time I get angry, then what will happen to this battery? Little, it will go tip, 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 it will get discharged. Now why does this get discharged? Because I have created something which is very, very disturbing inside. So this gets discharged. Then the one who I get angry with, so suppose you get angry with somebody for 1 minute or even 30 seconds and you got angry and you finished, forgotten. But the other person takes time to forget. How much time do you think people take to forget when somebody shouts at them? If somebody gets angry with you, how much time do you take to forget? 1 day. Oh. How long? Lifelong also. Oh, see? So somebody will take 1 hour, somebody will take 1 day, somebody can take 1 week, somebody says, I will keep it with me for lifelong. So now just think, okay? So I get angry with somebody for 1 minute. In that 1 minute, this battery goes a little discharged. Now that person doesn't forget it for 1 hour. So that person does not forget it for 1 hour. So for 1 hour, what kind of thoughts that person is creating for me? For 1 hour, what kind of thoughts that person is creating for me? They are not thinking very nicely about me because they are a little upset.
Now all that they are thinking about me, where is all the energy going to go? Where's all the energy going to go? Suppose I get angry with you now for 1 minute, and then you get upset and you start creating those thoughts. All that you are thinking about me, where will it go? Where will it go? What do you think? If I keep thinking from you over here, she shouted at me, she hurt me, she upset me, she troubled me, she disturbed me, where will all my thoughts go who I'm thinking about? It will go towards the person whom we have created about. So if I think for you from here, all that energy goes to you. So if you get angry with somebody, the battery will first get discharged when we get angry. And the battery will keep getting discharged till somebody is thinking negative about me. So if somebody is going to remember it for 1 hour, so you have made an investment for which return is going to come for? Investment was for how much time? 1 minute. Return is for 1 hour. Now suppose the other person takes 1 day to forget, investment for 1 minute, return for 1 day. Somebody doesn't want to forget it ever. So investment for 1 minute, return for, this is an equation. Like for money we invest carefully, no? So what is the investment I am making? What is the return I am going to get? How long am I going to get the return and what is the return? Similarly, in how we think, how we speak and how we behave and how we work, we need to take care that everything we are doing is an investment. It is going to get a return. Take care what is going to be the return and for how long is going to be the return. Someone working with you makes a mistake, or someone working with you does not complete what they were supposed to do, or someone working with you does not do it at all only. Right? We have to get the work done. We have to get the work done, which means we have to discipline. But suppose we create anger to get the work done, so we say something wrong to the person, the work will get done. But while getting the work done, what's the investment we will make? And when we make that investment, the energy comes to us for a very, very long time. When one person creates anger and shouts at the other person, who gets affected more? The one who creates the anger or the one who receives the anger? किसका ज़्यादा असर हो रहा है? जो गुस्सा कर रहा है या जो गुस्सा खा रहा है, मिल रहा है जिसको? जो गुस्सा कर रहा है और दे रहा है या जिसको मिल रहा है? Who's getting affected more? ये दे रहा है, ये ले रहा है, किसको ज़्यादा असर पड़ रहा है? Okay, opinion poll. How many of you feel कि जो दे रहा है उस पे ज़्यादा असर पड़ता है? अच्छा, and how many of you feel जो ले रहा है उस पे ज़्यादा असर पड़ता है? अच्छा, एक दिन ऐसा करेंगे कि when somebody is getting angry with another person, you should just go and check the pulse and the heartbeat of both the people, जो दे रहा है और जो ले रहा है. क्या लगता है किसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा? देने वाले का बढ़ेगा. अरे गुस्सा तो इसके लिए था, इसका क्यों बढ़ेगा? अगर पल्स चेक करेंगे तो किसकी बढ़ेगी? देने वाले की या लेने वाले की? तो विच मीन्स वो गुस्सा किस पर ज़्यादा असर कर रहा है? जो लेने वाला है, that person has a choice. जो लेने वाला है, the receiver has a choice. Have you ever seen or have you ever been a receiver where one person gets angry every day? So over a period of time, हम क्या बोलते हैं? इनकी तो आदत है, ये तो गुस्सा करते रहते हैं. So the receiver has a choice. The receiver over a period of time
get immune, become habit. It can be at home, it can be at work, it can be with your neighbor, it can be with your friend. घर में सपोज मम्मी या पापा दोनों में से गुस्सा करता है तो दूसरा बच्चों को क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं ना, आदत है, तुम छोड़ दो। लेकिन जिसने किया उस पे तो असर पड़ा ना। सो रिसीवर इज गेटिंग डैमेज्ड और द गिवर इज गेटिंग डैमेज्ड। किसकी बॉडी पे ज्यादा असर पड़ेगा, रिसीवर और गिवर? ना, विच मीन्स गलती की उसने और डैमेज हुआ किसका? गलती की उन्होंने और डैमेज हुआ किसका? मेरा, because I used anger to get the work done. I used anger to get discipline done. If it was once in a while, it's okay. But this we are doing every single day. And because we are doing every single day, तो ये बैटरी क्या होती गई? अब जितनी ये बैटरी डिस्चार्ज होगी, so pressures of life will appear to be bigger. It's like this table. This table has a set weight. इसका एक वजन है। अगर मेरे में ताकत है, if I'm powerful, I can pick up the table. But if I don't take care for 2 months and my power starts reducing, then my ability to pick up the table will. अगर ताकत है तो टेबल उठा लेंगे। अगर 2 महीना अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा और ताकत कम हुई तो टेबल उठाना मुश्किल हो जाएगा। तो देन वी से टेबल बहुत भारी है। टेबल भारी है या हम वीक है? व्हाट्स द सिचुएशन? टेबल इज हेवी और आई एम वीक? श्योर? Somebody else can pick up the same table very easily, and somebody else can pick up the table with one hand. टेबल भारी है या मैं वीक हूँ? लाइफ के प्रेशर्स ज़्यादा हैं या आई एम वीक टू हैंडल देम? 30 years 40 years बैक एक घर में 3 4 5 बच्चे भी हुआ करते थे, right? How many have seen that generation? 5 6 children in one house, है ना? We've all seen. वो कब पैदा हुए, कब बड़े हो गए, कब कॉलेज चले गए, कब बन गए जो उन्होंने बनना था, घर में किसी को कुछ पता ही नहीं चला। वो भी पेरेंटिंग थी। आज एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, टेंशन। अभी एग्जाम है ना नेक्स्ट मंथ से, तो बच्चे को ज़्यादा टेंशन या पेरेंट को ज़्यादा टेंशन? 20-30 years पहले पूछते तो शायद पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को पता भी नहीं था कब एग्ज़ाम दिया, कब एग्ज़ाम पूरा हुआ, कब बन गए ऑफिसर पे। लेकिन आज के पेरेंट एग्ज़ाम है। टुडे 1 child 2 child parents are finding it very difficult to parent the child. तो पेरेंटिंग वही है, टेबल है, लेकिन पेरेंटिंग डिफिकल्ट लग रही है क्योंकि पेरेंटिंग करने वाले हम क्या हो गए, हम थोड़े से वीक हो गए। तो देयर इज नो सच थिंग एज वेरी डिफिकल्ट प्रेशर्स इन लाइफ। बातों का कोई साइज नहीं होता सिचुएशन के। यू कैन मीट पीपल हु आर गोइंग थ्रू अ वेरी क्रॉनिक इलनेस। Somebody could be going through an advanced stage of cancer and they'll say, you ask them, how is everything? All good, all perfect. ना हमने तो सुना आपको बहुत बड़ी बीमारी है। हाँ तो क्या हुआ? all good, life is very beautiful. And किसी को 100 फीवर है, वो कहते हैं हाय मैं बीमार हूँ, हाय मैं बीमार हूँ। तो प्रेशर का क्या साइज है? उनको कैंसर है लेकिन वो खुश है। इनको फीवर है। हैव यू सीन लाइक दैट पीपल? 100 फीवर में हाय करते रहते हैं, आई एम नॉट वेल। सो इट्स नॉट द वेट ऑफ द टेबल, इट इज माई स्ट्रेंथ। नाउ pressures of life, what would we call the pressures of our life? What are the pressures in our life because of which we get a little stressed? What are pressures in life? Is work a pressure?
Yes or no? Work is a pressure. So what about the work is a pressure? We have to very clearly find it. What is the pressure? What about work is the pressure? क्या प्रेशर है? काम की जगह पर क्या प्रेशर है? ये हमारा काम की जगह है, ये हमारा ऑफिस है, रोज़ आना है, रोज़ काम करना है, रोज़ जाना है। काम की जगह पर प्रेशर क्या है? एक है काम है, प्रेशर क्या है? अच्छा, एक ही टाइम पे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ओके, सो द अमाउंट ऑफ टाइम दैट आई हैव टू बी एबल टू कंप्लीट माय वर्क इज अ प्रेशर। ओके, एनीथिंग एल्स? So one is the time management. Managing my time with my work is a pressure. Anything else? हाँ जी? अच्छा, target भी है. Okay. So then I have to achieve that target. That is also a pressure. Okay. Anything else? So one is time. The other is the target we have to achieve. Anything else? जी? Demands from the people. So people have become very demanding now, right? It's become very difficult to give people contented. संतुष्ट रहना लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि संतुष्ट means battery, contented means battery charged. Most of the people in the society are not taking care of their battery, so they become a little like this. So they don't get contented very easily. So they will have more and more demands. You don't even need to go into the society. See in your own house. See in the own house. Do we feel there are more and more and more demands from everybody in the house? Yes? So it's going to happen in society also. So people's demands, targets to achieve, lack of time, anything else? Pressure? Oh, salary भी time पे नहीं मिलती है, वो भी pressure है। Okay, ये भी नहीं। हाँ, हमेशा ओ ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता है। हाँ, कितनी सारी बातें हैं। कुछ और है क्या? स्टाफ क्या करता है? स्टाफ शॉर्टेज है। ओके, काम ज़्यादा है, लोग कम है। ओके, रिसोर्सेज भी कम है। ओके, एनीथिंग एल्स रिमेनिंग? और जो लोग हैं वो भी तो हमारे जैसे नहीं है ना। लोग तो हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका मेरे काम करने के तरीके से अलग है, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब ये सारे जो प्रेशर्स हैं, डू यू थिंक इन द कमिंग 5 years एनी ऑफ दिस प्रेशर्स विल रिड्यूस? If people are demanding today, then in the next 5 years people will become even more demanding. If you have more work today and less time, then in the coming 5 years your amount of work and time is only going to increase. If you have less people today, coming time work will increase so much that you will again find people lesser. None of these pressures can be solved. These pressures are there, they may remain the same, or pressures can even increase. So does that mean if the pressure increases, my stress will also increase? No. We have to get the formula of stress. Stress is equal to pressure divided by inner resilience. Inner resilience means उस pressure को face करने की मेरी inner power, मेरी आंतरिक शक्ति, मेरी अंदर की ताकत। ये फिजिक्स का फॉर्मूला है। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय इनर पावर। प्रेशर हमारे कंट्रोल में? प्रेशर हमारे कंट्रोल में नहीं। डिनोमिनेटर इनर पावर, क्या ये हमारे कंट्रोल में है? न्यूमरेटर हमारे कंट्रोल में नहीं। डिनोमिनेटर हमारे कंट्रोल में है? Now in the 5 years, if the numerator increases and we don't take care of the denominator, then the stress level will increase. आज के समय में people are not just talking about stress, people are even experiencing depression. मतलब वो स्ट्रेस से भी आगे जाकर बढ़कर एक बीमारी बन जाती है। It's an illness.
So if we do not work on the denominator, then the gap between the numerator and the denominator will increase. Is stress caused because of the pressure, or is stress caused because my denominator is less? Pressure is a situation of life. It's like the table. If we keep blaming the table, table bhari hai, table bhari hai, table bhari hai, तो blaming the table also reduces my power. हम जहाँ जहाँ काम करते हैं, हम जहाँ जहाँ रहते हैं, there are certain things which are not our way, right? But just experiment for even 1 month. If 1 month, every single day, if 2-3 times also you say this ना, काम बहुत है, टाइम कम है, काम बहुत है, टाइम कम है, लोग ही नहीं है, काम होगा कैसे, इतना काम कर कैसे सकते हैं हम जैसे लोग, मतलब ये समझते हैं कि ये इतना सारा काम हम ही कर लेंगे. सिर्फ दिन में 2-3 बार बोल दो इसको, 30 डेज के लिए 2-3 बार सिर्फ बोल दो. और एक्चुअली अगर आप एक दिन चेक करो, हम 2-3 बार नहीं बोलते ये लाइन. कितनी बार बोलते होंगे दिन में? सुबह सुबह उठे, ओ लेट हो गया, आज तो इतना काम है, कब से बोला है सर को 4 लोग और दे दो, देते ही नहीं है, समझते मैं अकेले ही करने वाले हूँ ये सब. सुबह सुबह फर्स्ट थॉट. फिर चाय पीने बैठे, फैमिली मेम्बर्स ने बोला क्या हाल चाल, आज सब ठीक है, किधर का ठीक है, इतना काम है, लोग भी नहीं देते साथ में, तो उनको भी सुनाया वो ज्ञान. फिर ऑफिस में आए, कुछ भी थोड़ा सा भी बात आई ना, थोड़ा सा भी, एनीबडी सेज इज एवरीथिंग ओके, किधर का ओके, इतना काम है, लोग नहीं देते साथ में. नाउ वेरी सून दिस लाइन starts becoming our very repeated thought. And every time we are creating a thought which is saying life is not right for me, nothing is right for me over here at work, what will happen to the battery? What will happen to the battery? Come, tip, tip, tip. If you want to change your life experience, maybe people outside will not increase. But if you just want to change how you feel and how you work, तो आप आज से कुछ लाइन्स को चेंज कर दीजिए. आप ये लाइन क्रिएट कीजिए कि हमारे पास जितने लोग चाहिए ना, उससे ज़्यादा लोग हैं हमारे पास काम करने के लिए. कर सकते हैं ऐसा? सिर्फ झूठ बोलो, सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ झूठ बोलना है थोड़े दिन के लिए. झूठ बोल सकते हैं थोड़े दिन के लिए, बोल सकते हैं थोड़े दिन के लिए, झूठ बोल सकते हैं. सिर्फ अच्छा सोचना है और अच्छा बोलना है. 20 साल पहले लोगों के घर छोटे होते थे, लेकिन एक छोटे घर में भी इतने लोग रहते थे. होता था कि नहीं? क्योंकि अगर उनसे कोई पूछता था ना, डू यू हैव इनफ प्लेस इन योर हाउस, कैन मोर पीपल कम, यू नो व्हाट दे यूज्ड टू से इमीडिएटली, वी हैव लॉट ऑफ स्पेस, आने दो. फिर अगर किचन में खाना बन रहा होता था तो बोलते थे 2 लोगों को और बुला ले, है उतना खाना, तो खाना बनाने वाली माता जो होती, बहुत खाना है, आप बुला लो. आज पता है क्या लोग बोलते हैं? जगह नहीं है, जगह नहीं है, और मत बुलाना किसी को. फर्क है या नहीं है? है. नाउ पहले घर छोटे थे लेकिन सोच बड़ी थी. आज घर बड़े लेकिन उतने बड़े घर में रह के भी हम बोलते हैं जगह नहीं है, जगह नहीं है. आई डोंट वांट एनीबडी एल्स कमिंग इनटू माय रूम, आई डोंट वांट एनीबडी एल्स कमिंग इनटू माय हाउस, आई डोंट हैव स्पेस. तो घर बड़े हो गए, सोच छोटी हो गई, तो बड़े घर में रह के भी खुश नहीं है. जब छोटे घर में रहते थे लेकिन सोच बड़ी थी, तो छोटे घर में रह के भी. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिश्ते कैसे थे? रिश्ते ज़्यादा जुड़े हुए थे. आज बच्चों के पास मम्मी पापा को ठहराने की जगह नहीं है, बाकी और किसी को क्या ठहराएंगे. बिकॉज घर का साइज इज नॉट इम्पोर्टेंट, सोच का साइज इज इम्पोर्टेंट. सो व्हेन वी आर इन अ वर्क प्लेस, इट्स वेरी रिस्की. वन पर्सन सेज लोग कम है, द अदर पर्सन सेज हाँ राइट बात है, लोग तो कम है. थर्ड पर्सन सेज ऑब्वियसली शुरू से इतने ही लोग हैं यहाँ पर. थोड़े दिन के बाद दैट लाइन बिकम्स लाइक अ
that line becomes like a virus. It just spreads like that, and very soon it becomes like the main line of the office. लोग कम है, कैसे काम करें? इतने से लोगों में कैसे काम होगा? इतने से पैसों में कैसे काम होगा? फैसिलिटीज ही नहीं है, कैसे काम होगा? सो द एनर्जी दैट वी स्टार्ट क्रिएटिंग, सबसे पहले वो क्या करता है यहाँ के बैटरी को? आई एम अनहैप्पी विद माई लाइफ, I am unhappy with my workplace. I am not contented with what I have got. And first it will happen here, and then because I will keep saying, इतने लोगों में काम नहीं हो सकता, इतने लोगों में काम नहीं हो सकता, इतने लोगों में काम नहीं हो सकता, तो वो काम नहीं होगा. आप कभी मंदिर जाके देखना, मंदिर में you are not allowed to see कि कितना प्रसाद है अंदर. मंदिर को ये नहीं पता होता कि आज पूरे दिन में कितने लोग आने वाले हैं, राइट? लेकिन मंदिर में प्रसाद सबको मिलता है. यू नो क्यों मिलता है? क्योंकि मंदिर में वो कभी भी नहीं बोलते कि प्रसाद, वो कभी भी नहीं बोलते, वो बोलते कभी नहीं बोलेंगे प्रसाद कम है. कोई जाके पूछेगा ना प्रसाद है, बोलते बहुत है, बहुत है, बहुत है. एंड क्योंकि वो बहुत है, बहुत है, बहुत है सोचते हैं और बोलते हैं, कभी भी उस मंदिर से कोई बिना प्रसाद के जाता ही नहीं है. संकल्प से सिद्धि, थॉट्स मैनिफेस्ट, आवर थॉट्स बिकम अ रियलिटी. सो इफ यू जस्ट चेंज योर वोकैबुलरी एंड जस्ट स्टार्ट सेइंग आई हैव एवरीथिंग आई नीड, I have the resources I need, I have the people I need, and I have more time than I need. बोल सकते हैं इतना? बोले अभी इकट्ठे बोले, बोल के देखे एक बार. How does it sound? Say I have everything I need. अच्छे से बोलो, सोच के फील करके. I have everything I need. I have all the resources I need. I have more people than I need. And I have more time than I need. इतना धीरे आज बोल रहे हो, वापस जाके कैसे बोलोगे? अच्छे से बोलो, सोच के. It is all an attitude. It is not about what we have. There are some people who have lot of money, and so much money that their next generation can live without working. It's not about the amount. उनके पास है बहुत, लेकिन उनकी सोच कैसी है? कम है, इतने में नहीं चलेगा, इतने में नहीं चलेगा. कितना अमाउंट है डज नॉट मैटर, उसके बारे में एटीट्यूड कैसा है, सोच कैसी है. कुछ लोगों के पास अमाउंट कम है, लेकिन उनकी सोच कैसी है? हमारे पास भरपूर है, आई डोंट नीड मोर देन दिस, आई हैव मोर देन इनफ. इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट, इट्स अबाउट आवर थिंकिंग. दुनिया में क्या हुआ? एक नया लाइन स्टार्ट किया. आई एम वेरी बिजी, टाइम नहीं है. आई एम वेरी बिजी, टाइम नहीं है. काम बहुत है, टाइम नहीं है. अब टाइम तो उतना ही है जितना है, टाइम तो उतना ही है जितना है. बट बिकॉज वी केप्ट रिपीटेडली सेइंग टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, वी स्टार्टेड फीलिंग वी डिडंट हैव टाइम. देन वी स्टार्टेड सेइंग बच्चों के लिए टाइम नहीं है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है. फिर कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया मरने के लिए भी टाइम नहीं. आपके शहर में बोलते हैं ऐसे लोग? जहाँ से मैं आती हूँ तो बहुत लोग बोलते हैं मरने की भी फुर्सत नहीं है. दे डोंट इवन थिंक व्हाट दे आर सेइंग, बट दैट बिकम्स अ वोकैबुलरी बिकॉज समबडी मस्ट हैव सेड इट वन डे. किसी ने बोला होगा ये थोड़ा कर दो, कहते ये काम, मेरे पास तो मरने के लिए भी टाइम नहीं है. सुनने वाले ने कहा अच्छी लाइन है, मरने के लिए भी टाइम नहीं है, वेरी नाइस लाइन. बोलना शुरू कर दिया. एंड नाउ सो मेनी पीपल सेड विदाउट थिंकिंग व्हाट वी आर सेइंग. दैट इज व्हाई व्हाट वी थिंक एंड व्हाट वी स्पीक इज वेरी इंपॉर्टेंट, because what we think and what we speak will decide inner power, and what we think and what we speak will happen in reality. So एक चीज, never create a thought and word of lack कि कम है. कौन कौन सी चीज़ों के लिए हम कम है बोलते हैं? टाइम कम है, सैलरी कम है, रिसोर्सेस कम है. Every time I create a thought of कम है, lacking, there is an energy here which is saying कम है, कम है, कम है, कम है.
ये सारी एनर्जी कहाँ पहुँचती है? बॉडी को भी जाती है. एवरी थॉट वी क्रिएट गोज टू द बॉडी. So when I'm creating thoughts of come hai, I'm also radiating thoughts to the body which is come hai, that affects my health and my health becomes come. So instead of come hai, time, money, resources, you just start saying बहुत है, जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा है. कभी नहीं बोलना टाइम कम है. वी स्टार्ट फीलिंग टाइम कम है बिकॉज वी आर सेइंग इट टू ऑफन. ये लाइन को हमेशा यूज़ करना है. संकल्प से सिद्धि. थॉट्स मैनिफेस्ट. संकल्प मीन्स थॉट, सिद्धि मीन्स मैनिफेस्ट. इट विल हैपन. वॉट वी थिंक विल हैपन. सो शुड वी चेंज दोज 3 लाइन्स? रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज टुगेदर वी विल हैव टू चेंज आवर वोकैबुलरी. तो अगर दूसरा भी बोलने लगेगा ना तो आप धीरे से उसको प्यार से क्या कर देना. बिकॉज एवरी थॉट टुमारो मे बी योर रिसोर्सेज विल नॉट इंक्रीज, मे बी योर पीपल विल नॉट इंक्रीज, मे बी नथिंग विल चेंज, बट वन थिंग विल चेंज, योर इनर पावर. योर इनर पावर. दिस इनर पावर इज गोइंग टू डिसाइड योर लाइफ. This inner power, an attitude of complaining, शिकायत करना, क्रिटिसाइज करना, ये एटीट्यूड ऑफ कंप्लेनिंग एंड क्रिटिसिज्म हमारी इनर पावर को क्या करती है? जहाँ आप काम करते हैं, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि जहाँ आप काम करते हैं, we earn money from there, right, for the work we do. Yes, we earn money from our work. When we take this money home, what all does this money do? This money nurtures our family. इस पैसों से हमारा परिवार चलता है. आपके बच्चों की पढ़ाई कौन से पैसों से हो रही है? बच्चों की पढ़ाई कौन से पैसों से हो रही है? जो हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं. आपके बच्चों को खाना कौन से पैसों से मिलता है? जो हम यहाँ लेकर जा रहे हैं. Which means the money we earn is the foundation. And that money is used to nurture our whole family. Money is not just currency. Money is not just amount, XYZ amount. Money has energy, vibrations. So the money we bring home should have good energy. And that good energy will depend on how I have worked while creating and earning that money. One attitude could be, I complain about my work, I complain about my people, and I earn money and bring home. That money will also nourish my family. And one attitude would be, I say thank you for everything that I have in my life. I am grateful and I have gratitude for everything that's happening at my work. And then I earn that money and then I bring home. Will that have 2 different energies in the money? अगर आप अपने काम के जगह पर, कोई भी काम की जगह, there is no workplace which is 100% perfect the way we want. हर जगह पर कुछ ना कुछ incomplete है. But what energy I will put in that workplace will be the energy of money. If you earn money with an energy of complaint and criticism, that energy will come home. That energy is used to nourish your children. Your children will be nourished with energy of complaint and criticism. They will create the habit of complaint and criticism. आज आप अपने बच्चों के लिए कितनी भी मेहनत कर लें, बच्चों को कुछ ना कुछ कम लगता रहता है ना. किस किस के बच्चों को थोड़ा कुछ और चाहिए. They are not satisfied with how much they have got from their parents. How many children want more? चाहिए या नहीं चाहिए? और बोलते रहेंगे ना, वो ये चाहिए. मम्मी पापा कहते ये नहीं आ सकता, कहते आप तो कुछ देते ही नहीं, मेरे फ्रेंड्स के पास देखो सब कुछ है. Where is that attitude of lacking coming from? That attitude of lacking is coming from the parent. अगर पेरेंट ये एटीट्यूड कर ले, हमारे पास सब कुछ है, and creates an attitude of gratitude towards the workplace, the money which will be used to nourish the children will create an attitude of gratitude towards the parents. So if you want children to be grateful and thankful to you, then we need to be thankful to the money which we earn. आज बहुत लोग हैं जिनकी 1 सेकंड में
जॉब चली जाती है, जाती है ना, पढ़ते हैं ना हम रोज, जाती है। वी आर लिविंग थ्रू वेरी हाई रिस्क टाइम्स, अचानक कुछ भी हो सकता है। तो जब हमारे पास वो चीज़ है तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? 2 एटीट्यूड्स है, या तो शिकायत, कंप्लेन, या ग्रेटफुल, थैंक यू, शुक्रिया। कौन सा एटीट्यूड होना चाहिए अपनी जॉब के लिए? कौन सा एटीट्यूड होना चाहिए अपनी जॉब के लिए? आज अगर एक दिन में हमें पता चले हमारे पास वो जॉब ही नहीं है, कैन यू इमेजिन व्हाट विल हैपन टू लाइफ सडनली? क्या हो जाएगा सडनली? एवरीथिंग विल चेंज। So that place may not be perfect, the people may not be perfect, but I have to be thankful for what I have, because if I am thankful for it, I will be generating very good energy for it. And if I generate good energy for it, then that thing will stay with me. If I complain and criticize about it, then you never know what any day might happen and I lose something. इसीलिए एनर्जी यहाँ डिपेंडेंट है, यहाँ नहीं। सो एवरी डे वी शुड बिगिन आवर मॉर्निंग विद अ थैंक यू। लुक, अपनी बॉडी के लिए देखो, हाउ मेनी ऑफ यू से थैंक यू टू योर बॉडी एवरी डे? हैव यू एवर सेड थैंक यू टू योर बॉडी फॉर ऑल दैट इट डज फॉर यू? कितना काम करते हैं ये शरीर? करती है ना? हम इसको थैंक यू बोलते हैं। हम ये बोलते हैं आज मैं मोटा हो रहा हूँ, मैं पतला हो गया हूँ, मेरा लंग ये हो गया है, मेरे बाल गिर रहे हैं, मेरे स्किन पे ये, मतलब कुछ कंप्लेंट करना है तो वी आर देयर। आज थोड़ा सा भी कोई दर्द होगा यहाँ, तब हम 10 बार बोलेंगे आज मेरा पैर दर्द हो रहा है, आज मेरा पैर दर्द हो रहा है, आज मेरा पैर दर्द। लेकिन जिस दिन वो ठीक था उस दिन उसको थैंक यू बोला था? नहीं बोला। विच मीन्स वॉट ऑल वी हैव, वी डोंट से थैंक यू फॉर इट. We don't have a gratitude for it. But the day something is not right in that. Similarly, people, family, they have so much, they do so much for us. We are not thankful for that. But the day they do something which is not right, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया. This has become our attitude. And attitude कौन सा बन गया कि जो चीज़ अच्छी है, that's okay, अच्छी है, for granted. लेकिन जो नहीं है उसके बारे में बार बार सोचना और बोलना. The more we will think and talk what is not right, the more that will happen. It all depends on where our attention goes. So let's begin our morning with a thank you. कर सकते हैं थैंक यू सुबह सुबह? किस किस को थैंक यू करेंगे सुबह सुबह? फर्स्ट थॉट, इट शुड बी फर्स्ट थॉट. नेवर स्टार्ट, मेनी पीपल टुडे स्टार्ट देयर फर्स्ट थॉट विद लेट हो गया. वेरी रॉन्ग थॉट टू बिगिन द मॉर्निंग. जिसकी फर्स्ट थॉट ये हो गई ना लेट हो गया, उसका तो पूरा दिन यही जाएगा, लेट हो गया, लेट हो गया, लेट हो गया. दैट्स वाई दुनिया में कहते सुबह सुबह किसका चेहरा देखा. सुबह सुबह किसका चेहरा देखा मीन्स व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट यू क्रिएटेड इन द मॉर्निंग. सो द फर्स्ट थॉट शुड नेवर बी अ डिस्टर्बिंग थॉट. लेट हो गया, टाइम नहीं, नेवर. लेट द फर्स्ट थॉट बी ग्रैटिट्यूड. सो ग्रैटिट्यूड, थैंक यू फॉर. फर्स्ट थॉट क्या हो सकती है? थैंक यू फॉर. सोचो क्या इसको थैंक यू कर सकते हैं सुबह फर्स्ट थॉट के अंदर? थैंक यू फॉर. बताओ किसको थैंक यू करेंगे सुबह सुबह? यहाँ में तो करना है वन थॉट, इट टेक्स ओनली 2 seconds. किसको थैंक यू करेंगे फर्स्ट थॉट में? बताओ किसको थैंक यू करेंगे फर्स्ट थॉट में? भगवान को करेंगे. उसको थैंक यू रोज नहीं करते, लेकिन जिस दिन गड़बड़ होती है उसको शिकायत जरूर कर देते हैं. भगवान क्या है, ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया. बट सो यू सी वी ओनली हैव टू चेंज आवर एटीट्यूड. And the more we will be grateful for everything, the more the reasons to complain will start going. So सबसे पहला thank you उसको. Second thank you. Second thank you. Second thank you to our mind and our body. It is because of this mind and body that we are doing everything that we are doing. The more you will say thank you to them, the more they will work well for you. The more we will reject it,
ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है. Never reject your body, ever. Never reject your body. Then we are not creating a good energy with our body. Like if you reject people, आप ठीक नहीं हो, आप ठीक नहीं हो, आप ठीक नहीं हो, तो उनके साथ हमारा रिश्ता क्या हो जाएगा? हमारा हमारी बॉडी के साथ भी रिश्ता है. हमारा हमारी बॉडी के साथ भी एक रिश्ता है. So that relationship with my body should be in harmony, and that will only happen when I am grateful to my body, when I am thankful to my body, when I love my body the way it is, not complaining about the body. तो थैंक यू कर सकते हैं बॉडी को भी, कर सकते हैं. यस. माइंड को भी थैंक यू कर सकते हैं. यस. सो गॉड, देन माइंड एंड बॉडी. थर्ड, थैंक यू. Thank you. Thank you to people. Thank you to my family. The more you will say thank you to them in your mind, the lesser you will see problems and mistakes in them during the day. Because you have shifted your attention towards gratitude. And fourth, thank you to my workplace. सुबह सुबह एक थॉट क्रिएट करो कि उस जगह के लिए शुक्रिया जहाँ से मेरा पूरा परिवार चलता है. किस किस का परिवार चल रहा है इस जगह से कमाए हुए पैसों की वजह से? किस किस का घर चल रहा है? चल रहा है ना? चल रहा है ना? कैन यू इमेजिन योर लाइफ इफ दिस अमाउंट एंड दिस मनी गोज आउट फ्रॉम योर लाइफ? कैन वी इमेजिन अ लाइफ? नो. तो हाउ मच वी शुड रेडिएट थैंक यू टू दिस प्लेस? हाउ मच वी शुड रेडिएट थैंक यू टू दिस प्लेस? So, thank you to your workplace. The more you will say this, which means you will shift from an attitude of complaining to gratitude. The more we will shift, the more this inner power will start increasing. You will find everything perfect. You will find your house perfect. You will find your people perfect. You will find life perfect. Because you have shifted from complaining to being thankful. This battery will start increasing. कर सकते हैं? When this battery starts increasing, people whom you connect with during the day, जो लोग आपके साथ काम करते हैं, जो लोग आपके पास आते हैं हेल्प के लिए, they may be very demanding, which is true. Demanding means battery is a little, they need more and more and more. और कितना भी मिले contented नहीं होते, तो demands बढ़ती जा रही है. So they may be very demanding, which means battery is low. If we don't take care of our battery, then connecting to a discharged battery, what will that do to our battery? What does that do to our battery? If a battery connects with a discharged battery, then what will happen to this battery? This will also get discharged. So we have to take a lot of care that our battery needs to be full. Then when people come to us, we will do everything possible to do for them. हम कुछ लोगों के काम कर सकेंगे, कुछ लोगों के काम हम पूरे नहीं कर सकेंगे, लेकिन हमसे मिलकर उनको वाइब्रेशन कौन सी मिलनी चाहिए? हमसे मिलकर उनको वाइब्रेशंस और एनर्जी कौन सी मिलनी चाहिए जिससे उनकी बैटरी क्या हो जाए, थोड़ी सी चार्ज. और जब हमसे मिलकर उनकी बैटरी चार्ज हो जाएगी ना, वो कहेंगे हाँ आई अंडरस्टैंड, आपने अपनी पूरी कोशिश की, अभी नहीं हो पा रहा ना, कोई बात नहीं, हो जाएगा थोड़े टाइम बाद. क्योंकि उनकी बैटरी भी क्या हो जाएगी, चार्ज. क्योंकि आपने कौन सी एनर्जी रेडिएट की, ग्रैटिट्यूड की, तो उनकी भी एनर्जी कौन सी चेंज हो जाएगी, ग्रैटिट्यूड की. इफ़ आई एम एट अ वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कंप्लेनिंग, तो मैं जिनको भी मिलूंगी दे विल ऑल्सो बी एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ कंप्लेनिंग बिकॉज ऑफ मी. तो आप उनके लिए कितना भी करेंगे, वो बोलेंगे इट्स नॉट इनफ, आई नीड मोर. Because we are creating that energy, it's not enough, I need more. तो आपकी वाइब्रेशन सारा दिन लोगों को जाएंगी. हमें ये याद रखना होगा कि जो काम हम कर रहे हैं, this is not just work, this is not work, this is actually सेवा. हम सेवा कर रहे हैं ना, आप सेवा कर रहे हैं ना. कोई प्रॉब्लम में आया, उसकी मदद की, सेवा. कोई दुखी आया, उसके लिए कुछ किया, वो खुश हो गया, सेवा. दिस सेवा, when the energy is like this, we are doing something for people. तो जो सेवा करते हैं,
वो क्या कमाएंगे? क्या कमाएंगे? जो सेवा करेंगे वो क्या कमाएंगे? कोई रोड क्रॉस कर रहा था और किसी ने रुक के उसको सिर्फ रोड क्रॉस करने में मदद कर दिया। कितनी देर की सेवा? 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स की सेवा करने से भी उसने क्या कमा लिया? क्या कमा लिया? What did the person earn? They earned blessings. They earned blessings. आप सारा दिन में कितनी ब्लेसिंग्स कमाते हैं? आपने कभी काउंट किया? बहुत कम जॉब्स ऐसी होती हैं, बहुत कम जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ जॉब में ही ब्लेसिंग मिलता है। अभी सपोज मेरा काम है कंप्यूटर के साथ अकेले बैठे रहना एक कंपनी में, सारा दिन में मेरा कंप्यूटर काम चल रहा है, आई एम नॉट गेटिंग एनी ब्लेसिंग्स फ्रॉम द कंप्यूटर, तो आई विल अर्न लॉट ऑफ मनी बट आई एम नॉट अर्निंग एनी ब्लेसिंग्स। 2 बैंक अकाउंट्स वी हैव, वन इज अ मनी बैंक अकाउंट एंड वन इज अ ब्लेसिंग्स बैंक अकाउंट। कौन से में ज़्यादा होना चाहिए? ओ ऐसे कैसे? ब्लेसिंग से क्या खरीद के आएंगे आप? ब्लेसिंग से क्या खरीदेंगे? क्यों ब्लेसिंग ज़्यादा होनी चाहिए? क्या खरीदने वाले हैं आप ब्लेसिंग से? छोटी सी गड़बड़ क्या हुई है ना, पिछले 10-20 सालों में लोगों ने ब्लेसिंग वाले बैंक अकाउंट पे ध्यान रखना ही छोड़ दिया है। उनका सारा फोकस क्या है? मनी 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 मनी, विच इज़ ओके। मनी अर्न कर ली, मनी अर्न करके क्या हुआ? बड़े घर हो गए, बड़े घर में सब सामान हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन घर में खुशी, रिश्तों में हार्मनी, वो क्या होती गई? बिकॉज दे डिड नॉट टेक केयर ऑफ द अदर अकाउंट। मनी कैन बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट वॉट कैन मनी बाय? ओनली एवरीथिंग दैट इज फिजिकल, राइट? मनी ये कुर्सी खरीद सकती है, लेकिन इस कुर्सी पे बैठकर मेरी बॉडी कंफर्टेबल हो सकती है। सो आई कैन बाय माई फिजिकल कंफर्ट, बट इस कुर्सी पर बैठकर मेरा मन खुश हो, कैन आई डू दैट विद मनी? कैन आई डू दैट विद मनी? नहीं। सो मनी कैन बाय थिंग्स, खुशी किससे आएगी? आई नीड टू अर्न, आई नीड टू अर्न। रोज 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 सुबह भगवान को शुक्रिया करो कि मुझे ऐसा काम दिया है जिसमें मुझे सारा दिन ब्लेसिंग्स अर्न करने की अपॉर्चुनिटी है। ब्लेसिंग्स वो पावर है जो आपकी लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं। कोई दुखी था, आपके पास आया, 15 मिनट में उसका काम हो गया या 4 दिन में उसका काम हो गया, उसने सारी जीवन किसको ब्लेसिंग देनी है? किसको ब्लेसिंग देनी है? कि उनकी वजह से काम हो गया, उनकी वजह से काम हो गया। दिस इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ अ फ्यू मिनट्स, रिटर्न फॉर अ लाइफ टाइम। हम ये चेक कर रहे हैं कि सैलरी कितनी मिल रही है, क्या हम ये चेक कर रहे हैं कि ब्लेसिंग्स कितनी मिल रही है? जब कोई बीमार होता है, जब कोई बीमार होता है किसी के घर में, वो डॉक्टर को कहता है डॉक्टर साहब सारे पैसे ले लो, मेरे इसको ठीक कर दो। डॉक्टर साहब कहते पहले अभी दुआ करो, दुआ करो। तो दुआ और ब्लेसिंग्स वो चीज़ नहीं है जो उस टाइम करनी होती है। दुआ एंड ब्लेसिंग्स इज दैट वी अर्न इन आवर लाइफ। वी हैव सीन पीपल हु हैव लॉट ऑफ मनी, बट व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम इन देयर लाइफ, all the money put together cannot solve their problem. And there have been people who have very little money, but they have earned so many blessings that when there is a problem in their life, someone will come, someone will help, someone will do something and miracle create हो जाएगा। Money cannot create miracles, blessing can create miracles। हो सकता है? नहीं हो सकता। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो हमारा फोकस किस पर होना चाहिए? पैसे तो हम अर्न कर ही रहे हैं, वो तो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन हमारे को सारा दिन ये इंटेंशन रखना होगा याद कि यहाँ पर हम काम करने नहीं आते, यहाँ पर हम सेवा करने आते हैं। जितना हम एथिकली सेवा करते हैं, ऑनेस्टली सेवा करते हैं, सिंसियरली सेवा करते हैं, और जितना प्यार से हम हर एक के साथ चलते हैं,
रिस्पेक्ट के साथ हर एक से चलते हैं, तो हमारा वो डिनोमिनेटर जो इनर पावर है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एंड वी विल कीप अर्निंग लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। प्लीज रिमेंबर, बहुत कुछ आजकल जीवन में हो रहा है। मनी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व एवरीथिंग, बट ब्लेसिंग्स विल बी एबल टू सॉल्व एवरीथिंग, एंड ब्लेसिंग्स कैन मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल। इम्पॉसिबल विल बिकम पॉसिबल। दुनिया कहेगी पता नहीं किसकी दुआ लगी है इनके जीवन में सब कुछ ठीक हो गया। वो दुआ कहाँ से आती है? दुआ कहाँ से आती है? वो दुआ हमने सारा दिन अपने काम में कमाई होती है। रोज़ चेक करो, मेरा हर काम सेवा है, एंड व्हाट आई एम अर्निंग फ्रॉम देयर इज ब्लेसिंग्स। मनी विल ब्रिंग थिंग्स इनटू द हाउस, blessings will bring happiness into the house. Money can give us big houses, blessings can give us good relationships. Money can give us the fund to have treatment done, blessings can give our body good health. तो कौन सा बैंक अकाउंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? कौन सा बैंक अकाउंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ब्लेसिंग्स। तो रोज़ सारा दिन उसी इंटेंशन से काम करना है। जब आप सुबह आकर अपनी जगह पर बैठते हैं ना, when you come and sit in your place, your first thought should be शुक्रिया, मुझे सेवा करने के लिए भेजा है सारा दिन। It's all about the attitude of what we are doing. शुक्रिया, मुझे आज सारा दिन चांस दिया सेवा करने के लिए। दुनिया में लोग काम अलग करते हैं फॉर अर्निंग मनी, और सेवा अलग करते हैं फॉर अर्निंग ब्लेसिंग्स। वर्क अलग होता है एंड सोशल वर्क एंड चैरिटी अलग होता है। आपका वो काम है जो काम में ही आप पैसे भी कमा सकते हैं और काम में ही दुआएं भी करा सकते हैं। तो आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपके पास ज़्यादा टाइम है, क्योंकि आप उतने ही काम में सब कुछ कमा सकते हैं। So every day say thank you to God that I have the fortune to earn so many blessings. हर रोज़ इस जगह का शुक्रिया कि ये जगह पैसों से और दुआओं से मेरे परिवार को नर्चर करता है। When you have to check, don't check I'm getting less, earning less. Say I'm earning so many blessings for my family. आप जो blessings earn करते हैं वो सिर्फ आपको नहीं मिलते, आपके blessings किसको मिलते हैं? आपकी family को मिलते हैं। आपके बच्चों की नरिशमेंट में दुआएं जा रही हैं अभी से। We underestimate the power of blessings. And if somebody keeps earning blessings always, उनकी लाइफ कैसी होगी? जो हमेशा दुआएं कमा रहे। जीवन कैसी होगी? जो दुआएं कमाएंगे। कैसी होगी? जो दुआएं कमाएंगे। कैसी होगी? जो दुआएं कमाएंगे। They will always be light and happy. So when you start focusing on that, I am doing seva, this is my seva place. Limitations हैं, लेकिन उनसे मिलकर हमको बहुत अच्छा लगता है। Depends on the energy that they are carrying. So it is an energy of gratitude, an energy of seva, and an energy of blessings. We can earn this by creating the right thought, the right word, and the right behavior. We are living in times where people will have different ways of working. We have to create our own ways of working which are highest in ethics. Ethics जितने हमारे हाई होते जाएंगे, honesty and sincerity जितनी हाई होती जाएगी, inner power उतनी बढ़ती जाएगी। कभी कभी सुबह 5 बजे 4 बजे हम रोड पे जा रहे हैं, रेड सिग्नल है रोड पे, कोई नहीं है देखने के लिए, पुलिसमैन भी नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन रेड सिग्नल है सामने रोड पे। क्या हमें रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? Nobody is there to see us, and there is no traffic also on the road actually, so it won't create any problem for anybody also. But there is a red signal, there is a law of the country on the road. Should we stop or should we go? तो आप रेडी हैं स्टॉप करने के लिए? उस टाइम पे पता है क्या होता है? एक जना ऐसे ही चला जाता है, दूसरा जना उसको देखते कहता है अरे ये रुका नहीं,
चला गया, मेरे पास भी टाइम की कमी है तो मैं भी वो 30 सेकेंड, क्योंकि एटीट्यूड बन गया ना, आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम. You see this attitude, how it reflects in society. How much time does it take at a red signal? 30 seconds, 50 seconds. That also people are jumping because they live with this belief that they are short of 50 seconds in their life. जैसे कि 50 सेकंड में वो क्या अचीव करेंगे वो पता नहीं है, लेकिन उसको भी वो नियम को तोड़ते हैं. जब हम नियम को तोड़ेंगे, इनर पावर घटेगी. मर्यादा, जीवन की मर्यादा, लाइफस्टाइल डिसिप्लिन. नाउ वन पर्सन विल ब्रेक द रेड सिग्नल, 3 more will break the red signal only because they will see the other person breaking the signal. होता है कि नहीं ऐसा? अच्छा वो भी जा रहे हैं, जाओ, वो भी जा रहे हैं, जाओ, वो भी जा रहे हैं, जाओ, ठीक है. तो 3 लोग तो सिर्फ फॉलो ही कर लेते हैं. फिर आप आए 4th पर्सन, आप रुक गए. जब आप रुक गए तो आपको लगता है आपके पीछे कुछ और लोग भी रुकते हैं आपको देख के. रुकते हैं या नहीं रुकते हैं? रुकते हैं ना. सो आपका कर्म, योर राइट कर्म कैन ऑल्सो मेक अदर पीपल डू द राइट कर्म. अब ये भी हो सकता है कि जब आप रेड सिग्नल पे रुकते हैं तो कोई आपको क्रॉस करता है और आपको देख के हंसता है. क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, रुके क्यों हुए? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता, बड़े अजीब लोग हैं, खड़ी सड़क पे रेड सिग्नल पे सुबह 4 बजे ये रुके क्यों हैं. So there are people who will make fun of you. There are people who will criticize you for you doing the right thing. And there are people who will stand and follow you and be inspired by you. So we are living in times where if you stand to do something for the right, there can also be people who laugh at you for that. And there can also be people who criticize you for that. And there can also be people who will trouble you for that. क्योंकि समय वैसा चल रहा है. लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारा हर कर्मा should be standing on the right. Even if you're standing alone. Even if you're standing alone at that red signal, that is our line of maryada. रामायण सुनते हैं ना हम, तो सीता के बाहर एक सर्कल बनाया था ना. रावण was not able to come inside that circle. Did we ever think Ravan is so powerful, why can't he come inside one circle? Sita has to go out of the circle. Ravan cannot come inside the circle. इतना पावरफुल रावण, लेकिन सर्कल नहीं क्रॉस कर सकता. हमने कभी सोचा ही नहीं, कहानी सुनते हैं सिर्फ. रावण could not cross the circle. Sita has to go out of the circle. ये जो सर्कल है ना, this is our circle of maryadas, values, principles. And Ravan stands for all our vices. 10 सिर है ना रावण के. 10 सिर रावण के मतलब हमारी सारी नेगेटिविटी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, लस्ट, ईगो. Negativity cannot cross the circle. We have to cross the circle and go out, and then negativity can capture us. तो ये याद रखना है, रावण सर्कल के अंदर नहीं आ सकता. हमें सर्कल को क्रॉस करना पड़ता है. जब तक हम सर्कल के अंदर हैं तो सीता हमेशा सेफ है. अगर वो सर्कल के अंदर है तो अपने आप को हमेशा लाइफ के डिसिप्लिन्स के सर्कल के अंदर रखना. इवन इफ पीपल अराउंड यू आर गोइंग आउट ऑफ द सर्कल, रिमेंबर दैट रेड लाइट, लेट एवरीवन क्रॉस इट. वी विल स्टैंड देयर, follow the rules and set our own system of ethics. The more we will do that, our willpower will increase, our inner power will increase, pressure will not change, might even increase, lekin happiness and health will go on increasing, and stress factor will start reducing, not just for us, for our whole family. क्योंकि हमारा परिवार किससे पलेगा? फिर दुआओं से. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? सेवा. रोज सुबह एक चीज का ध्यान रखना, सुबह उठते ही फर्स्ट 1 hour डोंट रीड, वॉच, लिसन व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. हमें से कौन कौन सुबह उठ के टीवी ऑन, न्यूज़पेपर, फोन. सबसे पहले सुबह उठ के फोन कौन देखता है? कौन कौन फोन देखता है सुबह उठते?
What we think, what we watch, read, listen goes in and creates our thoughts. So our inner power is dependent on what we watch, read, listen. 20 years pehle we had no TV, no phone. So what we were watching, reading, listening was very little. Mind was safe. Then 10 years back we got 24/7 television. Inner power battery reduced. Now we have television on the phone. Every time click, watch, click, read, click, listen. Look at our children today. सारा दिन click, click, click कर रहे हैं. जितना हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे ऐसा, उतना हम ज़्यादा सोचेंगे. इसलिए आजकल लोग सोचते ज़्यादा है हर बात के बारे में. Too much thinking because too much of watching, reading, listening. To take care, what is the quality of what we consume. जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं, अगर उसमें टेंशन है, क्रिटिसिज्म है, कंप्लेनिंग है, एंगर है, वो अंदर जाएगा, हम भी वैसे बनेंगे. What we watch, read, listen, we become. So if we want to change what we become, we only have to change what we watch, read, listen. 3 months करके देख लो homework है. 3 months. First thing in the morning, first thing, mind is clean, pure, absorption power is highest. तो सुबह सुबह अंदर क्या डालना चाहिए? सुबह सुबह अंदर क्या डालना चाहिए? क्या होना चाहिए सुबह सुबह अंदर? The beginning of the day should be very pure, very sattvic. पहले सुबह सुबह घर में क्या होता था? भजन, पाठ, पूजा. अभी न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर, उसी से डेस्टिनी बदल गई है सारी. We need purity and peace and power first thing in the morning. At the Brahma Kumaris, what we do, we have so many centers. Everybody who comes to the center, they are working, they have a family, they have children, but for 1 hour they come to the center in the morning. And 1 hour में क्या करते हैं? सुबह सुबह study. Study means reading and listening to content which is full of purity, peace, happiness, respect, compassion. Subah subah. And meditation. 1 hour. Remaining 23 hours for the world. So which means 1 hour to charge this battery and 23 hours to do seva for the world. We all charge our phones before we leave from home, but we don't charge ourselves before we leave from home. कोई भी अपना फ़ोन चार्ज करे बिना निकलता नहीं है. और सुबह चार्ज करने के बाद भी दिन में बीच में भी बार बार. और हम में से कुछ लोग तो पावर बैंक, पावर चार्जर अपने साथ ही लेके घूमते हैं. क्यों? क्योंकि इतना यूज़ करते हैं ना. लेकिन उससे भी ज़्यादा किसको यूज़ कर रहे हैं? इसको. तो इसको चार्ज करना चाहिए ना हमें. तो 1 घंटा सुबह अपने लिए रखिए. 1 hour. Not listening to any negative content. The 1 hour of the morning should be very pure, powerful, peaceful content. And last 1 hour of the night, again no news, no serial, no drama, nothing which is not right in the last 1 hour of the night. रात को सोने से पहले जो last 1 hour, 1 घंटा होगा, what we put inside that time will decide the quality of sleep. आज हम सोते हैं लेकिन नींद अच्छी नहीं है, क्योंकि नींद में भी वही थॉट्स चल रही है सारी. सो टेक केयर. Last 1 hour we should be with family, just relax, be with everybody. Don't sit in front of TV in the last 1 hour. That time should be for ourselves. Read something, study something, be with children. हमें लगा टेलीविजन मीन्स एंटरटेनमेंट है, टाइम पास है. वो टाइम पास नहीं हो रहा, वो टॉक्सिक हो रहा है. अभी जो ड्रामा टीवी पे दिखता है ना, थोड़े दिन के बाद वो ड्रामा कहाँ दिखने लग जाता है. जो ड्रामा टीवी पे दिखते हैं ना, क्योंकि वो घर में दोज वर्ड्स आर वाइब्रेटिंग एवरी सिंगल डे. थोड़े दिन के बाद वो झगड़ा लड़ाई घर में दिखती है. टू बी वेरी वेरी केयरफुल. लास्ट 1 hour and first 1 hour, there should be no negative energy in the house. Nothing. And third thing is while eating your food. While eating your food, don't have TV or phone while eating the food. खाना खाने में कितना टाइम लगता है? 10 minutes. 10 minutes. वो 10 minutes भी हम टीवी के सामने जाके बैठ जाते हैं. जैसा अन्न
वैसा मन, which means the food has a direct impact on our mind, not just on our body. Food affects the mind. So while we are eating, what were we supposed to do before we eat? खाना खाने से पहले क्या करना था? खाना खाने से पहले क्या करना था? प्रे करना था। हम में से कौन प्रे करता है 3 टाइम बिफोर ईटिंग फूड? कौन कौन प्रे कर रहा है 3 टाइम बिफोर ईटिंग फूड? सी, वी आर नॉट डूइंग व्हाट वी वर सपोज्ड टू डू। वो प्रे क्यों करना था? क्यों प्रे करना है खाने के साथ? ताकि खाना खाने से पहले मन की एनर्जी कैसे हो जाए? हाई। फिर खाने की एनर्जी को क्या करें? प्योरीफाई, और फिर खाना खाते हैं। हम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कैसे करते हैं? भागते भागते, लेट हो रहा है जल्दी करो, लेट हो रहा है जल्दी करो। आफ्टरनून का लंच हम किधर करते हैं? ऑफिस के अंदर। ऑफिस के अंदर करते हैं तो ऑफिस की गॉसिप चलती है खाना खाते टाइम। या फिर ये बोल देंगे, सपोज आपने खाना खाते टाइम कभी बोल दिया ना, ये लोग कम है, पैसा कम है, टाइम नहीं है, तो वो तो एनर्जाइज हो जाएगा सारा उसके अंदर। एंड रात को खाना हम खाते हैं टीवी के साथ, तो हमारे तीनों मील्स अफेक्टेड है इस टाइम। दैट्स वाई द माइंड इज लूजिंग इट्स पावर। 10 minutes, eat peacefully, begin your meal with a prayer of 10 seconds, energize your food and then you eat. Just even that much will change your inner power. खाने से मन बनता है, मन से बॉडी बनती है। It's not about what we are eating, it's about how we are eating. क्या खा रहे हैं से ज़्यादा ज़रूरी है कैसे खा रहे हैं। तो खाना खाते समय साइलेंस में बैठें या अच्छी अच्छी बातें करें। शिकायत, क्रिटिसिज्म कुछ भी नहीं। प्रॉब्लम डिस्कशन नेवर। सो 1 hour in the morning for spiritual study and meditation, 1 hour in the night with family and with self, and while eating only happy conversations or silence. 3 things also will charge the inner battery. And taking care that during the day what are we consuming from media, social media, बार बार वही सुनते जा रहे हैं, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, रिपीट में चलता जाता है। वो वहाँ पे न्यूज़ में लूप में जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ लूप पे जाता है। हमारी थॉट्स भी ऐसे लूप में चली जाती है। सो वी नीड टू टेक केयर। 1 hour in the morning if you give to charge this battery. Brahma Kumari centers are everywhere where you stay. Wherever you stay, wherever, within 3 kilometers there will be a meditation center. When we go out of this hall, sisters have prepared prasad for you at the center, and they'll give you a little card, and on the card are the address of the centers in this area. In any center you can go anytime, any day, any time, and the sisters are there to teach us meditation. 1 hour a day for 7 days, 7 दिन, रोज़ 1 घंटा, कोई भी दिन कोई भी टाइम। आप सिर्फ जाके अपना टाइम फिक्स करके शुरू कर सकते हैं ना। 1 घंटा तो अपने लिए निकाल सकते हैं। एंड देयर इज नेवर एनी अमाउंट, एनी फीस, एनीथिंग ऑफ एनी चार्जेस ऑफ द सेवा, बिकॉज सिस्टर्स आर देयर ओनली फॉर सेवा, ओनली फॉर सेवा। तो खुद भी जाइए, अपनी फैमिली को भी लेकर जाइए। इस समय घरों में सब कुछ है, घरों में सब कुछ है, सिर्फ ज़रूरत क्या है? एवरी फैमिली मेम्बर की बैटरी को क्या करने के लिए? चार्ज करने के लिए। बच्चों की बैटरी भी चार्ज करने की ज़रूरत है। अगर मम्मी पापा अपनी बैटरी चार्ज करेंगे तो बच्चों की बैटरी भी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। सो 1 person in every family needs to charge themselves every day. We need to learn the art of how to think right and to be stable. तो मेडिटेशन क्या करेगा? हमारा वो जो डिनोमिनेटर है, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय इनर पावर। प्रेशर नॉट इन आवर कंट्रोल, लेकिन मेडिटेशन हमारे डिनोमिनेटर को क्या कर देगा? जब डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो बात वही होगी, लेकिन स्ट्रेस की कोई फीलिंग आने वाली नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ा हुआ है। अभी एग्ज़ाम्स होंगे ना 1 महीने के अंदर, तो हमें अपने बच्चों के डिनोमिनेटर को क्या करना है? डिनोमिनेटर को क्या करना है? पढ़ाना है ना। कई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लास्ट डे पे टेंशन हो जाती है, लास्ट डे पे डर लगने लग जाता है, तो उनका डिनोमिनेटर क्या हो जाता है? थोड़ा सा
एंड जब वो डिनोमिनेटर कम होता है परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाती है. सो एक्चुअली दिस इज द राइट टाइम टू लर्न मेडिटेशन. This month is the right time to learn meditation for the parents, because if the parents learn it, then how will the parent be? Very stable, very powerful, and that powerful parent will make the child also very stable, and then the child will perform more than their capacity. If the parent gets tensed, child is already tensed, so the performance of the child will get little affected if they give the exam in a state of stress, एंग्जाइटी. एंड अगर किसी के बोर्ड के एग्ज़ाम है तो वो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी और भी बढ़ जाता है. सो लेट्स डू दैट मेडिटेशन बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्ट. सो फेब्रुअरी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मंथ जब हमें घर की एनर्जी को क्या करना है? हाई एनर्जी करना है. ओके जी, लेट्स सिट फॉर अ मिनट इन साइलेंस. आई एम अ प्योर पावरफुल बीइंग. My every thought is right. My every word is right. I have a beautiful life. I have a perfect healthy body. I have a beautiful workplace. I have more time than I need. I have all the resources and the people I need. I am there for seva. हर रोज सारा दिन हम सेवा कर रहे हैं. I watch, read, listen carefully. I only watch, read, listen what I want to become. My 1 hour in the morning is for myself. First hour in the morning is for myself, for my spiritual study and meditation. Everything I eat and drink is sattvic, pure.